This is me, Adi Shrivastava. I read in class 10th. I welcome you all guys to this amazing YouTube platform. As guys, we are doing the series to complete biology class 10th. We have seen a lot about life processes और उसके अंदर हमने life processes के अंदर न्यूट्रिशन का जो फर्स्ट पार्ट होता है जो कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको बहुत ही अच्छे से और इंटरेस्टिंग वे से कंप्लीट अप किया है एंड I really believe that you are all just master out that particular topic with 3D studies. So, if you are just new at this YouTube platform, I recommend you to subscribe the channel and also to press the bell icon present right below it so you cannot miss any of the update from 3D studies. So, why this amazing and interesting good thing? Let us begin that what we are going to begin today. So, as nothing written about, but let me clear, today we are going to begin and understand about the topic heterotropic mode of nutrition. जैसा कि हमने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बहुत अच्छे से समझा था, वैसे ही as same way we'll understand about heterotropic mode of nutrition. So, let's begin. We have the second topic and the subtopic of nutrition, that is nothing but heterotrophic mode of nutrition. Now, when you see this word, when you just see this heterotropic word, before going to be just focus or put your eye upon the topic heterotropic, let you assume and I want from you to just recognize what we have learned in my first video about autotropic mode of nutrition. In that, I tell you that organism in that particular टॉपिक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने देखा था कि उसमें जो ऑर्गेनिज्म थे वो खुद से खाना बना रहे थे अपना. व्हाट डू यू मीन बाय खुद से खाना बनाना? दे आर सिंथेसिस एंड दे आर मेकिंग देयर फूड बाय देमसेल्फ. वी हैव द एग्जांपल, वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट दैट. वी हैव सीन द एग्जांपल दैट्स प्लांट कर रहे थे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और उस प्रोसेस को भी हमने 3 अलग अलग स्टेप्स से जाना था. वैसे ही इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या होगा? इस पर्टिकुलर टॉपिक हेटेरोटॉपिक में is going to be that organisms are dependent on others. So in this particular series of heterotropic mode of nutrition, organism will be dependent on others. What do you mean others? Let me tell you. In the heterotropic, you will see and you will just go through the 3 particular again subtopic of this particular topic heterotropic, and that consists of your holozoic mode of nutrition, saprophytic mode of nutrition and parasitic mode of nutrition. So जब हम उन तीनों को complete up करके बहुत अच्छे से समझेंगे तब आपको actually gist heterotropic का समझ में आएगा. So without wasting time, I really saying that comments are coming that मैम let's go in a रफ्तार और बहुत अच्छे से हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को जल्दी से जल्दी जितना हो सके कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक हमारा आने वाला है वो होने वाला है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके लिए उस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेसेस में बहुत सारी कमेंट्स आई हैं एंड इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी टॉपिक आप लोगों के लिए ला रही हूँ. और इसके बाद हम तुरंत से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स को और सम इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स को भी, एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स होती हैं उन्हें भी हम समझेंगे 1 by 1, क्योंकि एक सीरीज होती है कंप्लीशन की, न्यूट्रिशन फिर रेस्पिरेशन फिर ट्रांसलेशन. बट आपकी पर्टिकुलर डिमांड के लिए हेटेरोट्रॉपिक के बाद हम डाइजेशन को, ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट अप करेंगे. सो डोंट वरी अबाउट दैट. राइट नाउ फोकस अपॉन द टॉपिक heterotropic and their basic kinds. So let us begin. We have the 3 basic types of heterotropic mode of nutrition that I told you before also, that are your holozoic mode of nutrition. Then the second we have, what is going to be held at? We are going to be held at second as saprophytic mode of nutrition. And the third we have, not but not the least, we have holozoic, saprophytic and parasitic. So let us discuss one by one about first of all holozoic,
then saprophytic, and then parasitic. So let's start with holozoic mode of nutrition. So we have the first topic as holozoic mode of nutrition. So in this nutrition what happens? देखो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, पहले ये समझो. जैसे कि मुझे पता है ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स. ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन अदर. सो इससे जो क्लियरेंस हमारे माइंड में आती है वो क्या चीज़ है? एक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे डिपेंडेंट है. सो इस वर्ड को जब हम सुनते हैं ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर, सो इससे हमें 3 बेसिक थिंग्स आती हैं. वो कैसे डिपेंडेंट है? क्या वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है? क्या वो किसी ऑर्गेनिज्म को मार के उस पर डिपेंडेंट है? क्या वो ऑर्गेनिज्म उसे बिना मारे उस पर डिपेंडेंट है? क्या वो ऑर्गेनिज्म उसको उसके अंदर उसके ऊपर रहकर उस पर डिपेंडेंट है? सो इन सब के इस टाइप की बहुत सारे थॉट्स रिफ्लेक्शंस हमारे माइंड में आते हैं. जस्ट थ्रो देम आउट. Put your eye on the first part, that is holozoic mode of nutrition. What is going to be had at? See, let me write the definition of holozoic mode of nutrition. Then we'll move ahead and we'll understand about the holozoic and basic subtopics of heterotrophic mode of nutrition. So in this, what is going to be held at? Organism is going to be feeding just the food of what? Organism feed by ingestion the whole food material. Now what these line actually says? See, जो हाईलाइट वर्ड है वो आप लोगों को मैं बता देती हूँ, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए अगर आप हमारे साथ लिख रहे हैं. और सी, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब भी आप 3D स्टडीज़ के साथ पढ़ रहे हैं, पुट योर नोटबुक एंड पेन विद यू एंड जस्ट स्टार्ट मेकिंग द नोट्स. क्योंकि जो यहाँ पर बताया जाएगा वो बहुत ही एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू 95+ की सीरीज़ में हम लोग कर रहे हैं और उसकी ही रफ्तार से हम लोग चल रहे हैं. और जो बेसिक पॉइंट्स, जो बेसिक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं और जो कि मुझे खुद भी जब मैं पढ़ने बैठती हूँ और मुझे इंपॉर्टेंट स्टार मार्क लगते हैं, वो भी मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में और जो भी टॉपिक में हम लोग आप लोग के साथ डिस्कस करते हैं उसमें मैं बताती रहती हूँ. तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि जब भी आप 3D स्टडीज़ के साथ पढ़ें, हाईलाइट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, स्टार मार्क वर्ड्स को लिखते चलिए. तो लेट्स बिगिन. इसमें क्या स्टार मार्क है? इसमें जो आपके तीनों होंगे हॉलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, उसमें ऑर्गेनिज्म तो होगा ही. क्या चीज़ सिमिलर है? ऑर्गेनिज्म. अब डिफरेंसेस क्या है उसको देखिए. होलोजोइक में ऑर्गेनिज्म फीड करेंगे, खाएंगे, तीनों खाएंगे. दे आर द सिमिलरिटीज. डिफरेंसेस क्या है मैम बताइए? डिफरेंसेस ये हैं कि ऑर्गेनिज्म विल फीड, खाएंगे, लेकिन खाएंगे कैसे? बाय इंजेक्शन द होल फूड मटेरियल. व्हाट डू यू मीन बाय हियर? दे विल इंजेक्शन. व्हाट? इंजेक्शन को क्या कहते हैं? इंजेक्शन इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड. पहला प्रोसेस होता है जब हम लोग फूड को मुंह में रखते हैं, उससे वहाँ से हमारा इंजेक्शन स्टार्ट होता है. और उसके बाद हमारे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं. कुछ डाइजेस्टेड फूड होता है जो एब्जॉर्व कर लिया जाता है बॉडी की एनर्जी से, और कुछ अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो हमें नहीं चाहिए होता है ह्यूमन बॉडी को, और अलग सी ऑर्गेनिज्म को वो थ्रो आउट कर देते हैं बॉडी से. तो ये बात की चीज़ें, पहली चीज़ जो है वो इंजेक्शन है. सो व्हाट हैपन? ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेक्शन द होल फूड मटेरियल. पुट द सर्कल ऑन द टॉपिक होल फूड मटेरियल. पूरा का पूरा खाना, पूरा का पूरा फूड, चाहे वो एक बैक्टीरिया हो, चाहे वो एक ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एक एनिमल हो, चाहे वो एक प्लांट हो, चाहे वो एक प्लांट तो आएंगे नहीं इसमें, सॉरी, चाहे वो एक ह्यूमन हो, जब उसके सामने उसका खाना, उसका पर्टिकुलर खाना होगा, वो उस खाने को इंजेक्शन करेगा. पहले खाएगा और उस बॉडी को जो फूड खाएगा उस फूड को पूरा पूरा खा लेगा, थोड़ा थोड़ा करके नहीं खाएगा, उस फूड को पूरा खाएगा. और जो सेकेंड स्टेप में लिखने जा रही हूँ, सी एंड पुट योर आई ऑन दैट. सेकेंड क्या होगा? सी, organism will feed by ingestion the whole food material. Then the second thing that is going to be held in this, food will be, food, see, food ही तो उन्होंने खाया, simple. Food will be digested. Food will be digested and
absorbed by body. The basic and important point or see and put your eye on this particular thing. होलोजैग में क्या होगा? जस्ट थ्रो देम आउट, सी माई थिंग, मुझे देखो क्या होता है. होलोजैग में ऑर्गेनिज्म खाएंगे. कैसे खाएंगे? इंजेक्शन करेंगे. क्या करेंगे? होल फूड मटेरियल को. दिस मच क्लियर टू यू? देन मूव अहेड. उससे क्या करेंगे? उसको डाइजेस्ट करेंगे, उससे एनर्जी लेंगे और जो चीज़ें उन्हें मतलब कि यूजफुल नहीं होंगी उन्हें थ्रो आउट कर देंगे बॉडी से एज एन रिमूवल और वेस्ट के रूप में. और डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्व कर लेंगे. हो सो दिस मच क्लियर? और ये सब प्रोसेसेस कहाँ पे होंगे? बाहर होंगे? नो, ये सब प्रोसेसेस ऑर्गेनिज्म के इनसाइड होंगे. और यही एक पॉइंट है जो कि स्टार मार्क पॉइंट है और जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी बहुत देर से कि ये सब प्रोसेसेस होलोजैग मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने इनसाइड अंदर करते हैं. और यही चीज़ें आप लोगों को सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक से कुछ डिफरेंसेस होलोजैग से दिखाएगा. तो सबसे पहले हम लोग होलोजैग तो समझ गए आप सब. एग्जाम्पल्स भी हम लोग इसके देख लेते हैं. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड इफ यू वांट, देन वी विल मूव अहेड अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ होलोजैग मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Hope so you have taken the screenshot. Let me clear your examples over here, then we will move ahead about the second topic that is going to be saprophytic of mode of nutrition. So we have the example of holozoic mode of nutrition as we have amoeba, then we have, you need to learn this all and they are very easiest one. Amoeba, paramecium. Then the third as the easiest one we have animals. See, if you want in the board exams, if you want the full marks or 95 plus, see, if you have written like animal, you have written. If you will write more examples of animals, what could be that? That is your carnivores. Then we have omnivores, and then we have carnivores, omnivores, herbivores. So if you have written these type of more examples of example, you can have a good thing for getting more marks. So this was clear? Now we have understand about holozoic mode of nutrition. Let's move ahead and understand about the second topic, that is going to be saprophytic mode of nutrition. So as we have the second topic as saprophytic mode of nutrition. Now in this particular topic what we are going to be, इसमें क्या होता है और क्या क्या डिफरेंसेस होलोजैग से हमें कंपेयर करनी है. सी, लेट मी राइट द एग्जांपल. इन दिस व्हाट इज गोइंग टू बी हैड? ऑर्गेनिज्म विल फीड. सेम थिंग, सिमिलैरिटी मैंने पहले भी आप लोग को बता चुकी है. एंड पुट योर आई ऑन द स्क्रीन प्लीज गाइज. ऑर्गेनिज्म फीड देयर फूड बाय देयर फूड फ्रॉम, differences आ रहे हैं, you can see from here, from dead, decaying organism. In this what is going to be held at? Saprophytic में क्या differences हैं? Organism feed करेंगे, खाएंगे, but खाएंगे कहाँ से? Food from where? Dead, decaying organism. You have seen fungi, you have seen mushroom at the very old and wet tree, wet wood का एक पीस हो आपके पास, वो बहुत दिनों से भीगा पड़ा हो, वेट पड़ा हो, तो आपने देखा उसके ऊपर फंजाई लग जाती है. आपने ऐसे भी देखा होगा, ब्रेड खुली आपने रख दी हो, यू हैव नॉट पुट दैट ब्रेड ऑन इन द रेफ्रिजरेटर, यू हैव सीन दैट ऑन दैट इट्स जस्ट कमिंग द ईस्ट, उसके ऊपर फंजाई लग रही है. सिंपल, इट इज ओनली कॉल्ड एज सैप्रोफिटिक. इसी टाइप के ऑर्गेनिज्म हमारे सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं और दे आर रियली वेरी इजीएस्ट वन. सो दिस मच क्लियर. एंड इट इज व्हाट इज गोइंग टू बी हेल्ड एट, इसमें जो कि न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब्ड होंगे वो अच्छे से एब्जॉर्व कर लेंगे और ये सब चीज़ें एक्सटर्नली होंगी और डाइजेशन के बाद होगी. पहले डाइजेस्ट कर लेंगे फूड को, उसके बाद उससे न्यूट्रिएंट्स को लेंगे. बट होलोजैग में इससे बिल्कुल अपोजिट था. उसमें क्या था? खाया, डाइजेस्ट किया, एनर्जी लिया, फिर उसे थ्रो आउट किया. बट सैप्रोफिटिक में क्या था? खाया, डाइजेस्ट किया, फिर न्यूट्रिएंट्स लिए. वेरी स्टार पॉइंट.
Put your eye on that. Now let's see the example of saprophytic. देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट. बहुत easiest one है, don't worry about that. We have the examples like fungi, we have the examples like bacteria, and guys, see, I told you example की example अगर आप लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है. fungi की we have two examples like we have yeast and we have mushroom, not that खाने वाला, no, that fungi. All right, we have the example of bacteria. We have what is going to be example, bread malt, bread malt. So these were the examples of saprophytic mode of nutrition, and we have seen the basic differences and similarity with holozoic mode of nutrition. Now you can take this, you can take the screenshot of this particular slide. Then we will move ahead and understand about the third and the last about the parasitic mode of nutrition. So we know more about parasitic mode of nutrition. Now in this particular thing, what is going to be had at? In this, organism will going to take the food, because you know organism will take the food. But the start point is this. Holozoic में क्या था? लेना simple ले रहे थे whole food material को. Saprophytic में क्या था? Food organism से feed को तो कर रहे थे, but कैसे कर रहे थे? Dead decaying organism. इसमें क्या होगा? They will obtain their food. They will just feed the food. They will feed the food from without, basic thing, it's star point, without killing the host. Without killing the host. किसी ऑर्गेनिज्म को विदाउट उसे मारे, उसको मारने के बिना उससे अपना खाना निकाल लेते हैं. We have the best example, and you have seen the children's or many other human being having the leaves in their hair. Why they have that? Because of dirtiness. They have just went to the very bad surrounding if there is, so they just go through the particular thing, lice. So this thing happen in the parasitic. अगर हम examples की बात करें, इसमें क्या होता है? They obtain nutrition from inside the host. Inside the host, you have seen many plants of examples of parasitic. If I write the examples of parasitic, so we have the examples of parasitic, like we have the examples lice in the hair of the human body, and we have many other examples like you have coscuta plant, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अमरबेल. तो वो भी एक पैरासिटिक का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंडेंट होता है. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे अबाउट वी हैव डिस्कस्ड 3 मेजर थिंग एंड very in detailed about holozoic, saprophytic and parasitic. Now I'll be discussing in my second video about the steps of holozoic mode of nutrition, and then we'll discuss about digestion in human body, how this actually occurs. So till that, if you have not subscribed the channel, get it right now. Press the bell icon, share this video to your friend, and be happy and prosperous. Till that, thank you and goodbye.